নমস্কাৰ আপোনাৰ ঘৰখন যদি কেঁচা তেনেহলে আপুনি চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কিয়নো আপোনাৰো সপোন পূৰণ হ'ব জিঅ' টেগিঙৰ নতুন নিয়ম আহিছে আৰু সেই নতুন নিয়ম অনুসৰি আপোনাৰ ঘৰত যদি গাড়ী আছে তথাপিও আপুনি চৰকাৰী পকী ঘৰ লাভ কৰিব মাহে যদি আপোনাৰ উপাৰ্জন 15,000 টকা তথাপিও আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ আৰু এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ বা ৰাজ্যৰ লাখ লাখ কেঁচা ঘৰ থকা লোকৰ বাবে ভাল খবৰ লৈ আহিছে অসমত এটাও কেঁচা ঘৰ নাথাকিব আৰু সকলোৱে ঘৰ পকী হৈ পৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু হেহতিয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাবে প্ৰায় 4 লাখ ঘৰ পকী ঘৰ অনুমোদন জনাইছে এটা ভাল খবৰ এমুহূৰ্তত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো পকী ঘৰ নথকা ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকৰ বাবে ভাল খবৰ আহি গ'ল ঘৰত বাহন থাকিলেও লাভ কৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ আপোনাৰ ঘৰত যদি বাহন আছে তথাপিও আপুনি চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ আৰু ঘৰ লাভৰ বাবে হোৱা জিঅ' টেগিঙত আহিল নতুন নিয়ম মাহে 15,000 টকা উপাৰ্জন কৰিলে বঞ্চিত নহয় ঘৰ লাভৰ পৰা 15,000 টকালৈকে উপাৰ্জন কৰিলেও আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ অসমত নাথাকিব এটাও কেঁচা ঘৰ নাথাকিব বুলি চৰকাৰে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ আঁচনিৰ অধীনত আপুনিও লাভ কৰিব পকী ঘৰ আপোনাৰো সপোন পূৰণ হ'ব কেঁচা ঘৰত আপুনি থাকিব নালাগে অসমলৈ আৰু 3.676 লাখ পকী ঘৰৰ অনুমোদন জনাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে অসমবাসীক দিছে ৰাজ্যবাসীক উদ্দেশ্যি দিছে এই ভাল খবৰটো কালিৰ দিনটোত বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে ঘৰত যদি একাধিক দুচকীয়া বাহন থাকিলেও তথাপিও আপুনি বঞ্চিত নহ'ব ঘৰ লাভৰ পৰা পুনৰবালৈ কৰিছো পকী ঘৰ নথকা ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকৰ বাবে ভাল খবৰ ইতিমধ্যে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে লাখ লাখ লোকক চৰকাৰী পকী ঘৰ কালিৰ দিনটোতো একাংশ লোকৰ গৃহ প্ৰৱেশ ঘটিছে তাৰ মাজতে আন এক ডাঙৰ খবৰ আহিছে আৰু এয়া ডাঙৰ খবৰ হৈছে ঘৰত গাড়ী থাকিলেও আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ মন কৰিব জিঅ' টেগিঙত নতুন নিয়ম কিন্তু তাৰ বাবে আপুনি ফটো উঠাব লাগিব এখন ফটো ঘৰখনৰ এখন ফটো কেঁচা ঘৰখনৰ এখন ফটো উঠাওক আৰু তাৰ পাছতে আধাৰ কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড যদি আপোনাৰ এই যাৱতীয় প্ৰয়োজনীয় এই নথিকেইটা আছে তেনেহলে আপুনি অনলাইনৰ জৰিয়তে ফটো উঠাই চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিক আপুনি জমা দিয়ক তাৰ পাছতে আপুনি লাভ কৰিব চৰকাৰী পকী ঘৰ চৰকাৰী ঘৰ লাভৰ পৰা আপোনাক কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে গতিকে এতিয়াৰে পৰা আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক বৰ্তমান পৰ্যায়লৈকে যদি আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপুনি লাভ কৰিবই বুলি হে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে প্ৰতিগৰাকী যোগ্য হিতাধিকাৰীক বাছি উলিয়াবৰ বাবে এতিয়া চৰকাৰে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে প্ৰতিগৰাকী যোগ্য হিতাধিকাৰীক প্ৰাপ্য হিতাধিকাৰীক বাছি উলিয়াই এজন এজনকৈ সকলোকে চৰকাৰী ঘৰ প্ৰদান কৰা হ'ব জিঅ' টেগিঙত ইতিমধ্যে আহি গ'ল নতুন নিয়ম ঘৰত দুচকীয়া গাড়ী থাকিলেও আপুনি চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই মোৰ ঘৰত দুচকীয়া গাড়ী আছে গতিকে মই চিন্তা নকৰো মোৰ চিন্তা হৈছে যে মই ঘৰ লাভ নকৰিম কিন্তু সেই চিন্তা এতিয়াৰে পৰা আপুনি বাদ দিয়ক মাহে 15,000 উপাৰ্জন ঘৰত দুচকীয়া বাহন এখন বা একাধিক থাকক তথাপিও আপুনি চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবই চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে কালিৰ দিনটোত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে উল্লেখ কৰি ৰাজ্যবাসীক উদ্দেশ্যি কি কৈছিল মন্তব্য আছে মন্তব্য লৈ আহিছো फिर से सर्वे चल रहा है और सर्वे में इस बार 3 तरह की छूट और दी है नंबर 1 पहले जिनकी आमदनी इनकम 10,000 रुपया महीना से ज्यादा होती थी उनको मकान नहीं देते थे लेकिन अब 10,000 रुपया महीना तो हमारी लखपति दीदी कमा ही रही है एक तरफ हम कह रहे हैं लखपति दीदी बनाओ और दूसरी तरफ कहते थे 10,000 से ज्यादा आमदनी हो गई इनकम हो गई तो मकान देंगे ही नहीं तो कई दीदियां कहेंगी काय को लखपति बने मकान नहीं मिलेगा इसलिए दीदियों अब तय कर लिया है कि 15,000 रुपया महीना भी इनकम होगी तो भी मकान दिए जाएंगे चिंता करने की बात नहीं दूसरी चीज और की दादा जिनके पास 2 पहिया वाहन होते थे स्कूटर मोटरसाइकिल 2 व्हीलर उनको मकान नहीं देते थे अब 2 व्हीलर तो हर एक के पास है मजदूर भी मजदूरी करने जाता तो 2 व्हीलर पे जाता है क्या उसको मकान नहीं दें अब तय कर दिया बहनों भाइयों अगर मोटरसाइकिल स्कूटर बाइक वो भी घर में होगी तो भी मकान दिए जाएंगे और तीसरी चीज और जो छोटे किसान हैं 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन
अब वो भी तो दिनों रात मेहनत करते हैं खेत में, दुनिया का पेट भरते हैं। और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वाले किसानों को भी मकान दिए जाएंगे, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और आसाम ने तो बड़ी तेजी से सर्वे किया है, मैं बधाई देता हूं आपको, तेजी से यहां सर्वे का काम पूरा किया है। पर एक बार आप थोड़ा सा फिजिकली चेक करवा लीजिएगा ताकि सही पात्र हितग्राहियों को छांट सके, और जितने सही पात्र हितग्राहियों के नाम जुड़ेंगे उन सबको भी मकान दिए जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, ये हम करके रहे। अजय, ये मकान भी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से महिलाओं के नाम पर ही होते हैं, केवल पतिदेव के नाम पर नहीं होते, बहनों के नाम तो होते हैं। बहनों के नाम के मकान बनाएगी भी बहनें। और इसलिए मैंने अभी जया प्रसाद जी को बुलाया कि इसमें तो असम को कुछ और मिलना चाहिए, तो हमारे पास इनोवेशन का फंड है इन बहनों को मजबूती देने के लिए। उस फंड से भी हम इनोवेशन के लिए आसाम को मदद की बात नहीं करूंगा, हम उन बहनों को सहयोग करेंगे। अभी दादा कह रहे थे कि 3,76,000 मकान बचे हैं। मैं हिसाब लगा के आया हूं दादा, आपको याद होगा जब मोदी जी पहली बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो पिछली बार 2 बार असम को मकान दिए। पहली बार 3 सितंबर को 2024 में 1,71,000 मकान। लेकिन बाद में मैंने हिसाब किताब देखा और देखा असम तो जैसे ही मकान देते हैं स्वीकृत कर देता है, बना देता है, तो इतने से काम नहीं चलेगा। और इसलिए हमने उसी साल 27 जनवरी को 2025 में 3,88,000 मकान और आसाम को दे दिए। लेकिन आप भी तेजी से काम कर रहे हैं, आपने वो मकान भी स्वीकृत कर दिए, बना दिए। और अब 2018 के आवास प्लस की सूची में जो पात्र हितग्राही, मतलब जिन भाइयों और बहनों को मकान मिलना चाहिए, उनकी संख्या है 3,76,000। अगर ये 3,76,000 मकान और स्वीकृत हो जाए तो जितने भी पात्र हितग्राही है 2018 की आवास प्लस की सूची के, सबको मकान मिल जाएंगे। और इसलिए दादा आज पूरी तैयारी से हम आए, चिट्ठी लेके आपने मांगा और हमने दिया, क्योंकि आपका अधिकार है, इतना अच्छा काम करते हैं। ये पत्र मैं लाया हूं, 3,76,000 मकान तत्काल प्रभाव से असम के बहनों और भाइयों के लिए स्वीकृत किए जाते हैं। ये मैं दादा को भेंट, और यहां रुकने वाले नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि फिर से सर्वे हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है बहनों और भाइयों कि एक भी गरीब भाई बहन बिना मकान के नहीं रहेगा, कच्चे मकान में नहीं रहेगा। बोलिए, सबके पक्के मकान बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताइए, बनना चाहिए कि नहीं? सबके पक्के मकान बनना चाहिए, कोई कच्चे घर में ना रहे। और इसलिए इस बार व्यापक पैमाने पर सर्वे चल रहा है। फिर तय कर लिया कि मकान तो पूरे हो गए। कई लोग मिलते थे, हेमंता दा ने भी बताया, रंजीत दा ने बताया कि अभी तो कई लोग रह गए, 2018 की सूची से नाम छूट गए। कांग्रेस की सरकार ने, तत्कालीन ने जानबूझ के भी कई नाम छोड़ दिए होंगे, लेकिन हम किसी को नहीं छोड़ने वाले।